میری طرف سے سب حاضرین کو سلام. پریز گاڈ. آپ جانتے ہیں کہ پچھلی بار ہم نے نیا لیکچر شروع کیا تھا جس کا ٹاپک تھا خدا کے نزدیک نفرت انگیز کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں خدا کے حضور جو نفرت انگیز چیزیں ہیں جن سے خدا کراہیت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ 7 چیزیں انسانی زندگی میں نظر نہیں آنی چاہیے. جی پڑھ دیجئے ذرا. امثال 6 باب اس کی 16 آیت میں یوں رقم ہے: 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اونچی آنکھیں. یاد رکھیں یہاں پہلے 6 سلیمان نے کہا اور بعد میں 7 کہا. 6 چیزیں ہیں بلکہ 7 ہیں. اس کی سیکھ کیا بنتی ہے جی؟ کئی بار امثال کی کتاب میں یہ لفظ آیا، 6 چیزیں ہیں بلکہ 7 ہیں، 6 چیزیں ہیں بلکہ 7 ہیں. تو یہاں سیکھ یہ نکلتی ہے کہ انسان بھلکڑ ہے، انسان بھول جاتا ہے، اور کلام مقدس میں خدا نے جب بھی نبیوں پر کلام نازل کیا تو کہا لکھ لے. تو یہ جو خدا کا حکم ہے کہ لکھ لے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی بھی بات کو ہر وقت پورے طور پر یاد نہیں رکھ سکتا. زیادہ تر وہ باتیں بالکل واش ہو جاتی ہیں انسانی ذہن سے، تو اس لیے بار بار ریوائز کرنا پڑتا ہے اور پڑھنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں گے کہ سلیمان نے کہا 6 چیزیں ہیں، انہوں بانچو یاد آیا. تو اس کی سیکھ یہ ہے کہ انسان اپنی میموری میں کامل نہیں ہے. جی تو پڑھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. جی اونچی آنکھیں. اونچی آنکھیں. جھوٹی زبان. پچھلی بار ہم نے اونچی آنکھوں پر پونا گھنٹہ سیکھا ہے کہ اونچی آنکھوں سے خدا کو سخت نفرت ہے، اور کس طرح خدا نے نبوکد نظر کی آنکھیں کھولی اور نیچی کی. جی جھوٹی زبان. جھوٹی زبان. بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. دوسری چیز جس سے خدا نفرت کرتا ہے جھوٹی زبان. اور تیسری بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. شرارت کے لیے تیز رو پاؤں. برے منصوبے باندھنے والا دل. برے منصوبے، یہ چوتھی ہے. اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان دوسری، اور تیسرا بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، اور برے منصوبے باندھنے والا برے منصوبے باندھنے والا دل. آگے شرارت کے لیے تیز رو پاؤں. شرارت کے لیے تیز رو پاؤں. جھوٹا گواہ. جھوٹا گواہ جو درگوئی کرتا ہے. جو دروغ گوئی کرتا ہے. دروغ گوئی کرتا ہے. اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا اور ہے. جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. یہ 7 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے. تو آج دوسری چیز جھوٹی زبان. جھوٹی زبان سے بھی خداوند کو بڑی نفرت ہے. بات بات پر جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا، کسی بھی معاملے میں جھوٹ بول دینا، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان ہے. اور کئی لوگوں کو بے فائدہ جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے، اور کچھ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے. لہٰذا آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو خدا کو وہ بہت اچھا لگتا ہے اور خدا اس کو اگنور کرتا جائے گا. ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں جھوٹ نہ بولو، کسی بات میں بھی
बाइबल फरमाती है किसी बात में भी झूठ नहीं बोलना। और बाइबल में लिखा है हमारा खुदा सादकुल कौल है, सादकुल कौल। खुदा के जुबान में कभी झूठ नहीं पाया गया। और यीशु के बारे में भी कहा गया उसके मुंह में कोई छल का मतलब झूठ, फरेब। यीशु के मुंह में छल नहीं। अरे जब बाप सादकुल कौल है तो यीशु के मुंह में छल कैसे हो सकता है, झूठ कैसे हो सकता है? आज ये झूठ बोलने वाली जो बदरू है ना, इसको अपनी जिंदगी से क्या करना है? निकालना है। कितने लोग हैं जो झूठ बोलने को एक आम सा गुनाह समझते हैं, मगर बाइबल कहती है कि खुदा नफरत करता है झूठ बोलने से, उसको झूठ से कराहियत है। बल्कि आगे नफरत से जो अगला नफरत की शिद्दत के इजहार के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज है कराहियत। खुदा को झूठ से कराहियत है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोगों की जिंदगी में झूठ हो, बल्कि किसी की जिंदगी में भी वो झूठ पसंद नहीं करता। वो नहीं चाहता कि आप झूठ बोलें और अपनी बरकत को, अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी सेटिस्फैक्शन को और अपने ज़मीर को आप इग्नोर करें या कुचल डालें। आप अपने ज़मीर की भी आवाज़ नहीं सुनते, खुदा की भी नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते, कलाम की भी नहीं सुनते, तो फिर आप झूठ बोले चले जा रहे हैं और खुदा को इससे क्या है? कराहियत है। अगर आप बाइबल मुकाशवा में लिखा है झूठ बोलने वाले और झूठी बात गढ़ने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अरे कोई भी झूठी बात करने वाला, झूठी बात गढ़ने वाला, इसको अपनी जिंदगी में खारिज करें। खुदावंद को यह पसंद नहीं है और आप पर कभी भी ब्लेसिंग और बरकत नहीं आएगी अगर आप झूठ बोलने के आदी हैं। तो आपको आदत अगर पड़ गई है झूठ बोलने, चलो खैर है, अम्मी पूछेगी कह देंगे कोई झूठ बोल लेंगे, अब्बू पूछेंगे तो कहें झूठ बोल लेंगे, अफसर पूछेगा तो झूठ बोल लेंगे, पादरी पूछेगा तो झूठ बोल लेंगे। याद रखें, पादरियों से बोला हुआ झूठ बहुत महंगा पड़ता है। यह बाइबल की सच्चाई है और बाइबल की इल्हामी किताबों में खुसूसी तौर पर लिखा गया है पादरियों से झूठ बोला गया बड़ा खौफनाक होता है। तो लिहाजा पादरियों के साथ बोलते वक्त पहले 1000 बारी सोचना, क्योंकि खुदा नफरत करता है झूठ से। वो नहीं चाहता कि मेरे लोगों, अरे झूठ एक गंद है, कूड़ा है। अगर आपकी जिंदगी में ये है तो आप अपनी जिंदगी में कचरा उठाए हुए हैं। झूठ कचरा है और सच मोती है। सच के लिए तालियां बजाएं। झूठ कचरा है और सच मोती है, हीरा है, सोना है, चांदी है। अरे सच को आंच, मगर झूठ को आंच। अच्छा, सच को आंच नहीं और झूठ के पाँव नहीं। एवं पे डिग जाए बगैर दंदल पे, बगैर बेहोशी के झूठ गिर पड़ता। अरे झूठ कहीं भी खड़ा नहीं रह सकता। अगर वक्ती तौर पर झूठ खड़ा भी हुआ है तो धड़म करके किसी वक्त भी गिर जाएगा, मगर सच को कोई गिरा भी दे तो ये पहाड़ों की तरह कायम रहता है। हालेलुया। अगर सच को कोई गिरा भी दे, वक्ती तौर पर सच कुचला जाए, मगर एक वक्त में वो लावे की तरह फूटेगा, बाहर निकलेगा। आतिश फिशा पहाड़ की मानिद सच फट कर
बाहर आएगा और वो सच आपकी इज्जत वापस लुटाएगा और आपके सर का छीना हुआ ताज आपके सर पे वापस रखेगा। कौन? सच के लिए तालियां। बाइबल में वो कहता है खुदावंद को 6 चीजों से नफरत है, बल्कि 7 चीजों से, ऊंची आंखें और झूठी जुबान। अच्छा, मैं एक मियां बीवी का झूठ बताने लगा हूं बाइबल में से। इन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी मियां बीवी ने झूठ बोले, सबसे महंगा झूठ इनको ये वाला पड़ा जिसकी मैं मनादी करने लगा हूं। अरे इन दोनों मियां बीवी का हद से ज्यादा खौफनाक झूठ था जो इन्होंने बोला, और इनको सबसे महंगा पड़ा। अरे सब कुछ खो दिया इस झूठ की वजह से, सब कुछ लुटा दिया इस झूठ की वजह से। अरे अपनी ये दुनिया भी खो दी और हाय 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 अपनी अगली जिंदगी भी, आकबत भी, अपने आसमान की बादशाही भी खो दी। अरे आरजी जिंदगी भी इस झूठ की वजह से खो दी। अरे आज झूठ की बदरू कई ने झूठे ने ऐसे झूठ बोलेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर अगे जाके झूठ बोलेंगे, फिर झूठ बोलेंगे। झूठ, मैं कहता हूं यार इन्ना झूठ ਨੂੰ कुछ समझे ही नहीं। ज़बूर 5:6 में क्या लिखा है, जरा इनको निकाल के बताएं। ज़बूर 5 उसकी 6 आयत में जरा इनको पढ़ के बताएं। ज़बूर नवीस क्या कहता है झूठ के बारे में। ज़बूर 5 जल्दी से निकालें और जल्दी जल्दी पढ़ें, क्योंकि लोग झूठ बोलकर हलाक होने वाले हैं। लोग झूठ बोलकर अपना नुकसान करने वाले हैं। जल्दी जल्दी पढ़ें। तू उनको जो झूठ बोलते हैं, तू उनको जो झूठ बोलता है हलाक करेगा, सीधा ही हलाक करेगा। कोई सजा भी नहीं लिखा, कहता है हलाक करेगा। जब वो आपको देखेगा ना, इस बंदे की जिंदगी के हर मामले में झूठ ही झूठ है, कहता यार इनू लम्या पाओ, यार इनू लम्या पाओ, फरिश्तो इनू लम्या पाओ ते एदी रूह कड्डो, इनू चिट्टा लिबास पवाओ और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मिट्टी पाओ। ये किन्ने किया? अच्छे, आज आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मिट्टी पाओ। इनू फरिश्तियां नू की क्या है, पहले इनू की पाओ, लम्मा पाओ, फिर दी रूह कड्डो, फिर इनू की पवाओ, चिट्टा लिबास, तो फिर ਇਹਦੇ की पाओ, मिट्टी पाओ। ये दोनों मियां बीवी की कब्र खुदने लगी है। ये झूठ इनको बहुत महंगा पड़ा। दुनिया का सबसे महंगा तरीन हननिया और सफीरा का झूठ है, और वो भी बोल किससे रहे? अच्छा, पादरियों को के साथ जो झूठ बोला जाए वो ज्यादा खौफनाक क्यों है? हवाला बताएं जी, हवाला कौन सा है? नहीं, खुदा के खादम दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। अरे उनसे किया हुआ हर फेल दुगनी सजा, दुगना अजर। क्यों जी? टैली करता है वाला 100% टैली करता है। अरे खादम दो चंद इज्जत, पादरियों के साथ झूठ बोलकर दुगनी सजा है, दुगना नुकसान है। अरे किसी से झूठ बोलकर अपना सिंगल नुकसान करोगे, मगर पादरियों से झूठ बोल। अरे एक और बात, पादरियों से भोला हुआ झूठ सीधा किसके साथ झूठ तस्वर किया जाता है? खुदा के साथ। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। और कई लोग पादरियां नूं एवं फरलू खाता समझे होंदा है।
اور چلو کہہ دیں گے پادری نو اے یہ تے پتر سانو پتہ ہے نا تسی پادریاں نو اے کہہ دو گے تے سانو پتہ ہے کہ خدا تانوں کی کہہ دے گا ہے وہ تانوں پھر جڑا لمبے گا تہاڈا جڑا نقصان کرے گا وہ پھر ساڈے کولوں پوچھو نا تسی پادری نے تسی جھوٹ بول لیا ذرا دیکھیں یہ پادری کے ساتھ کیا جھوٹ بول رہے ہیں خداوند کو 6 چیزوں سے نفرت ہے بلکہ 7 چیزوں سے نفرت ہے اونچی آنکھیں اور نمبر 2 جھوٹی زبان جی پڑھ دیجئے امال 5 کی 1 میں یوں رقم ہے اور ایک شخص حنانیہ نام انہاں نو پی گیا دورہ حنانیہ نو تے سفیرہ نو جوش چڑھ گیا ہے وہ اسی بھی ہدیے دئیے ہوئے ہم بھی کیا دیں ہم بھی ہدیہ دیں ہم بھی کوئی اسپیشل تحفہ دیں کوئی بڑا ہدیہ ہم خدا کو دیں ارے ڈسیزن ایموشنلی لے لیا اور جھوٹ انہوں نے اتنی آسانی سے بول دیا ارادہ اتنا مضبوط کیا کہ یہ پلاٹ بیچیں گے چاہے 10 لاکھ کا بکے 20 لاکھ کا بکے 25 لاکھ کا بکے یہ پلاٹ کی ساری قیمت ہم کس کو دیں گے یسوع کو دیں گے اس کے خادموں کے قدموں میں جا کے رکھیں گے دونوں میاں بیوی نے بڑا ایموشنلی بڑی نیک نیتی سے فیصلہ کیا کہ یہ ہم جو پلاٹ ہے بیچ کے یسوع کو دیں گے سارا ہدیہ اب جب کہہ دیا وہ 15 لاکھ کا ہے وہ 25 لاکھ کا ہے وہ 30 لاکھ کا ہے اگر وہ 30 لاکھ کا ہے تو کس کا ہے خدا کا اور یسوع نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ یہ جو آپ کے دائیکیاں نا یہ آپ کی نہیں ہیں یہ خدا کی ہیں لہذا خدا کی دائیکیاں ایمانداری سے اس کو دیں کیونکہ اس کو خدا کا کہا گیا ہے جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو جب انہوں نے کہا کہ یہ پلاٹ ہم بیچے لہذا مختصر بیچ دیا جی فرض کریں بک گیا جی 20 لاکھ کا پلاٹ کتنے کا بک گیا اب جب حنانیہ پلاٹ بیچ کے آیا نا کہتا ہے پہلے تو گنے سو پھر سفیرہ کہندی میں بھی ذرا گن لا کہندے گن لا مگر وہ گنتے گنتے ہی شاید ان کو بڑی وہ کشش سی لگی سدھا ہی 20 لاکھ دے دئیے 20 لاکھ یسوع کو دے دے تو آ گیا پھر شیطان بیچ میں ارے جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اب یہ خدا کا تھا اور انہوں نے کیا کیا جی پڑھ دیجئے ذرا اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت بیوی کے جانتے ہوئے اٹس می کہ گول میز کانفرنس دونوں کی ہو گئی ہے دونوں کی میٹنگ اے ہون کوئی حکمت والی میٹنگ نہیں سی اے ہون منجی میٹنگ ایسی میٹنگ کو کیا کہتے ہیں منجی میٹنگ منجی پاویں ٹوٹیے تے پاویں کسیے تے پاویں ٹلیے انہوں منجی میٹنگ ہی کہن گے ارے یہ منجی میٹنگ کر رہے ہیں کہ کرے ہیں حنانیہ ایک گل نہیں سنتا کہ تیری تو سن کے ایتھے تک پہنچے ہیں سنا کہندی کہ 10 لاکھ رکھ لینے ہیں تے 10 لاکھ یہ ان کی زندگی کا سب سے نقصان دہ جھوٹ تھا ارے چھوٹے نقصان والے بھی جھوٹ ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی ایسے جھوٹ بھی ہمارے لیے گلے کا پھندا بن جاتے ہیں اس نے کہا اچھا اگوں بیوی بے وقوف اب ادھر لکھا نہیں کہ پہلے بے وقوف کون بنا ہے بیوی بنی ہے یا شوہر بھی بے وقوف ہو سکتا ہے کیونکہ میں بڑے بڑے چڈو کھیجے
बीवी भी झुड्डू मैं वेखियां ने, मगर शोहर भी एक तो एक झुड्डू मैं वेखिया जे। तो लिहाजा लिखा हुआ नहीं है, मगर मंजी मीटिंग च हुण कह सकने हैं कि दोनों झुड्डू मीटिंग ही कर रहे हैं। बहरहाल 10 लाख लेके पहुंच गए। आगे खुदा के पाकरू ने पहले से ही खुदा के खादम को बता दिया है। आ रहे ही कौन? पाकरू ने खुदा के खादम को, पतरस को कह दिया, हननिया आ रहा है, 10 लाख उहदे कोल है ते 10 लाख कहाँ है? तो वो आ रहा है। तो देखें वार्निंग मिली इसको, वार्निंग। जी पढ़ दीजिए। और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने रसूलों के कदमों में रख दिया? जरा कदमों में रख दिया, ए ते बोला जी थोड़ा जा। जी जी इजाजत है, इजाजत है जी शानी साहब। कदमों पर रख दिया, थोड़ी जी तफसीर करिए दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गूदा कढ़िए, जिवें हड्डी चो गूदा कढ़ीदा है, आयतों में मुकाशफात का गूदा निकालते हैं। 10 लाख किथे रखे हैं? कदमों पे रख दिया। सुनियो जी सारे, जरा सुनियो, मर्द भी सुनन। हदिया कहाँ रख दिया बहन सारिश? कदमों में। और कई जगह ऐसा हुआ है कि हदिया जात कदमों पे रसूलों के रखा जाता था। कदी तुसी अज तक मैनू दसो कोई तुसी दा यकी या हदिया लिया के मेरे कदमां च रखे? जे रख दो कलाम पूरा होएगा या नहीं होएगा? बोलो, पूरा होएगा ना। आज ये दा यकी लेकर आए होंगे, कई लेके आए होंगे। अगर आप मेरे कदमों में दा यकी रख दें, ये गुनाह है? ये तो गुनाह, वो छड्डो, ये तो कूड़ा है। बाइबल में दौलत को कचरा कहा गया है। कचरा भी किसी काम आ जाता है, किसी प्लाट दी भर्ती लई। मगर सुलेमान अपनी किताब में कहता है, क्या तो उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं। यानी वो कह रहा है वेल्थ इज नथिंग, दौलत कुछ भी नहीं। वो कह रहा है कि कदमों पे रख दिया। और मैंने कलीसिया में कई लोगों को कदमा च की रखना है, वो जलील ही कर छड़ देने हदिया लाते लाते। अरे ये खुदा के कलाम के खिलाफ है। ये तरीका है, हदिया कदमों पर खादम के रख दिया जाए तो आप खुदा की और खादम की क्या कर रहे हैं? इज्जत कर रहे हैं। आपके घर की हर चीज जो खाने पीने वाली है वो तो कदमों में खादमों के नहीं रखी जाती, वो तो टेबल पर रखी जाती है? मगर लिहाजा जलील ना करो हदिया च, ए वेखो कदमा च रखो। ठीक है, आगे पढ़ें जी। ये अब आज तफसीर बनती थी इसकी, मैंने कर दी जी। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया। पतरस कदी 10 लाख नू वेखे ते कदी हननिया नू वेखे। कहंदा पुत्र, दिल च कह रहा है खुदा दा खादम, पुत्र ए तू झूठ बोलन दिया, तू की कर रहे हैं? अरे खुदाबंद को 6 चीजों से बल्कि 7 चीजों से नफरत है। ऊंची आंखें, नंबर 2 झूठी जुबान से नफरत है। वो कहता है बेटे तू झूठ बोल रहा है, ये तू झूठ बोल रहा है। अच्छा जी आगे पढ़ें। क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले। तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले। जो पादरियों से झूठ बोलता है वो रूहुल कुद्स से नदीम साहब झूठ बोलता है। मगर जो तुहानू पादरियां दी कदर ही कोई नहीं, तुसी कहना वा चलो ये भी आम जे बंदा जे। अरे वो आपकी नजर में आम सा बंदा होगा, मगर खुदा उसको दुगनी इज्जत देता है।
खुदा उसको अपनी आंख की पुतली कहता है। वो आपकी नजर में कुछ भी हो सकता है। एक जगह पौलुस कलाम सुना रहा था, वहां रस लग गया। पौलुस कलाम सुना रहा है, पौलुस की लेक्चर की आवाज सड़क से जरा दूर जा रही है। कुछ बंदे गुजर रहे थे वहां से। उन्हें कहा यार वेखिए कि कमदारी तो नहीं हो रही, वेखिए की हो रहा है। बंदा एक लेक्चर दे रहा है तो तुसी कदी जुमा बाजार इतवार बाजार चले जाओ, उधर कई मदारीगर हैं, बल्कि दवाइयाँ बेचने वाले, मर्दों की दवाइयाँ बेचने वाले, औरतों के लिए दवाइयाँ बेचने वाले हैं, रश पा के खलोते होंगे। और इसी तरह पौलुस कलाम सुनार तक कहते ने आओ जरा सुने तो ये बकवासी क्या कहता है। हाय हाय हाय, रसूल आजम को क्या कह रहा है? बकवासी। बकवासी का मतलब है बकवास करने वाला, बक बक करने वाला। अरे खुदा की नजर में वो रसूल आजम है और आम लोगों के लिए। लिहाजा वो कहता है कि क्यों शैतान ने, और जो पादरियों से झूठ बोले, मैं ये नहीं कहूँ उसको कौवा काटे हैं, जो पादरियों से झूठ बोले उसको कौवा काटे। अरे उनको कौवा नहीं काटे, उनको खुदा काटे। ऐ कटन लगा जी। मैं सारे शागिर्दों को अलर्ट करता हूं, मेरे ना झूठ नहीं बोलना, मेरे ना झूठ नहीं बोलना। ते जे मैं फड़ लिया तुहाडा झूठ तो फिर क्रेडिट्स आपके कटेंगे। मैं तुहानू कटांगा ते नहीं, तुहाडे नंबर ते क्रेडिट से कट सकना ना है जी। पादरियों से बोला हुआ झूठ बहुत महंगा पड़ता है और महंगा पड़ने लगा है। फिर से पढ़ें, तूने रूहुल कुद्स से झूठ बोले हाँ, और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। क्या जब तक वो तेरे पास थी हाँ तेरी ना थी, तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। तेरे इख्तियार में नहीं। अच्छा, ये बोलते बोलते जुमला हननिया का रद्द अमल क्या होना चाहिए? ओए मैं मर गया, इनू किंज पता है, यही एक्शन होना चाहिए था ना। होया है, उन्हें समझे कुछ नहीं होना। रात गई, झूठ बोले, ये नहीं क्या कवा काटे। रात गई, झूठ बोले, कवा काटे, ये नहीं क्या। अरे जब खुदा के खादम से इल्मियत का कलाम, ये नबूवत का कलाम नहीं था। इल्मियत के कलाम में और नबूवत के कलाम में फ़र्क होता है। इल्मियत का कलाम मौजूदा कैफियत के लिए नाजिल होता है, नबूवत का कलाम फ्यूचर के लिए नाजिल होता है। तो ये इल्मियत का कलाम नाजिल हुआ था मौजूदा सिचुएशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, जाहिर करने के लिए। उसने कहा भाई मेरे ये क्या कर आया है कि आधी घर रखा है कीमत, आधी ले आया। क्या जब तक वो तेरी थी वो तेरी ना थी, बेची ना गई वो तेरी ना थी। तो इधर हननिया का एक्शन फौरन चेंज हो जाना चाहिए था, फौरन। क्यों जी कायनात, मैं क्या एक मिनट नहीं सी लाना चाहिए था। तो उसी वक्त खुदा के खादम रुक जा, सॉरी। अगर वो इस तरह करता तो उसको दिल का दौरा पड़ा ना, दिल का दौरा पड़ा उसको, हननिया को। अरे दिल का दौरा क्यों पड़ा? इतना बड़ा झूठ, और वो भी किन के साथ? पादरियों के साथ। जरा ऊंची कहना है, अरे झूठ बोला वो भी किन के साथ? अब खादमों कहना, अरे झूठ बोला वो भी किन के साथ? खादमों के साथ झूठ बोला, खादमों के साथ झूठ बोला। अरे इसको फिर कवा नहीं काटा। जरा पढ़ो जी, क्यों है? जिथे एदा हदियां पिया सी
لگتا ہے اوتھے ہی جا کے ڈگیا ہے. ہاں جی تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. ہاں جی. یہ باتیں سنتے ہی ارے یہ باتیں سنتے ہی کیا کرتا؟ حنانیہ توبہ 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 میری. رک جا، خدا کے قدم آگے کچھ نہ بولنا، بس ٹھیک ہے معافی 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 دے دے. مگر سنتے سنتے بین سیرش اے کہنا چاہیے سی نا، تو یہ تو نہیں سکیا. وہ کہندا ہے رات گئی جھوٹ بولے اے ہن ویکھو نو کٹن لگا جے. جی اگے بولو. یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا، حنانیہ دل کا دورہ پڑا، اور اس کا دم نکل گیا، دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. ہائے 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 ہائے. آس پاس کھڑے ہوئے کہ وہ خدا دیا خادمہ، یہ تو کنج دا خادم ہے؟ ارے کیا تیری خادمیت ہے؟ ارے کیا تیری بلاہٹ ہے؟ ارے کیا تیری انوائنٹنگ ہے؟ ارے مچھیرے تو مچھیرا لگا نہیں. ہائے ہائے ہائے. تالیاں مچھیرے پترس کے لیے تالیاں. ارے مچھیرے تو مچھیرا لگا نہیں بلکہ بلایا ہوا خدا کا ممسو لگا ہے. اتنا تیرا تعلق خدا کے ساتھ ہے. ارے دنیا کا سب سے خوفناک جھوٹ اس کے لیے یہ ثابت ہوا حنانیہ کے لیے. ہن اگے آ رہی ہے اے مر گیا راجا، جھوٹا بولو جھوٹا. اب کون آ رہی ہے؟ اب پھر بولنا ہے یہ مارا ہے جھوٹ کا. اب کون آ رہی ہے جھوٹ کی؟ جس کا کیا نام ہے؟ سفیرہ. ہن نو پے گا ایسا پیڑا. جی پڑھیں جی آگے. تقریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد 3.5 گھنٹے سے 2 جنازے. اچھا ایک اور بڑی عجیب بات ہے، بیوی نو بغیر دسیاں ہی دفنا دیتا ہے حنانیہ نو. ارے رسولوں کا کیا اختیار تھا جی. کہندا ہے ارے اس نے جھوٹ بولا ہے، خدا نے اس کو کاٹا ہے، میں نے نہیں کاٹا، میں نے تو نبوتی کلام ہی کیا ہے، علمیت کا کلام ہی کیا ہے. کلام نے مارا اس کو، بد دعا بھی نہیں دی. کلام نے مارا اس کو، میں نے نہیں مارا. تم نے کہا اے مچھیرے تو مچھیرا لگا نہیں خدا کا ممسو لگا ہے. اس نے کہا میں ممسو ہوں، کبھی مچھیرا بھی تھا، مگر یقین کرو میں نے نہیں مارا اس کو، میں نے نہیں مارا. کہندا ہے اگے ایک ہور پاکرو میرے وچ گل کر رہا ہے. کہندا کی ایدی بیوی بھی آ رہی جے، انہوں جلدی جلدی دفناؤ. کتنے گھنٹے بعد آئی ہے؟ تقریباً 3 گھنٹے. وہ کار 10 لاکھ گن رہی ہے. 1 2 3 4 100 1000 لاکھ 2 3 4 10 لاکھ. آوے کار والا کدھر نکلیے ٹی کے آر ہیں، کدھر نکلیے ہیں، ایوب لینڈ، جوائے لینڈ، سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ ہیں. آئے حنانیہ آ جا. ہو سکتا ہے بڑی خوش ہوئے نا، تو پھر یا تو بندہ زبور گاندہ ہے، جھوٹا آئے تھے، ہو سکتا ہے وہ کہہ رہی ہو سانو نہر والے پولے تے بٹھا کے، تے آپ ہی کتھے رہ گیا. وہ ہن کتھے نہیں رہ گیا، اور کسے جوگا نہیں رہ گیا. آج تسی میری مدد بہت کر رہے ہو، اچھے ہیں، میرے ڈائلاگس کمپلیٹ کر رہے ہو اچھے طریقے سے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیڑے پول تے جا کے بہ گیا، ہون تے پول ختم، اب تو چراغ گل ہیں. جی آگے پڑھ دیجئے ذرا.
और तकरीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद तकरीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो क्या तुमने इतने ही को। अच्छा, इन्हों वार्निंग दी सू, उसके लिए इमीडिएटली खुद ही कोई अच्छा सलूशन ढूंढना था। किधरे फंस जाओ ना ते जल्दी जल्दी कोई इहो जी नुकर, इहो जिहा सुराख लभो जिदे विचों चूहे की तरह निकल जाओ। और निकलो जे कड़की च फंस गए तो फिर गए मर, फंस गए तो तुझे कहना फंस गए तो फिर अरे चूहों की तरह किसी सुराख से निकलो बाहर। उसको तो ये ऑप्शन मिला ना, मगर वो ना कोई तेज तरास है ही नहीं सी। हालेलुया। आगे जी, इसको वार्निंग दी जा रही है। पतरस ने उसे कहा, मुझे बता। इसको पूछा है, उसको नहीं पूछा। मुझे बता, क्या जमीन इतने की ही बिकी है? ते वे लो ए भी रज के झूठी जे, ए भी रज के झूठी है। कई बच्चे पैर ती मुकर जाते, और बच्चे की शोर मुकर जाता, बीवी मुकर जाती है। असी क्या है, नहीं मैं आप ही सुनिया तेरे मुंह चो, नहीं 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 मैं नहीं, मैं क्या होना जो मैं निकल रहा ना, ये हुण या तो शोर के मुँह चो निकले तो बकरा है, तो बीवी के मुँह चो निकले तो, क्योंकि हुण मैं ही कर रही है, वो करके नहीं मान रही तो करके नहीं मान रहा, लिहाजा इसको मौका दिया गया। जी, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची? क्या तुमने इतने ही की जमीन बेची? उसने कहा हाँ। उसने कहा, हाय कितना बड़ा झूठ है, हैं? कहती है हाँ, तो इसको कहना चाहिए था ना, ये भी बच जाती। बचिया वो भी नहीं तो हुण बचनी ये भी नहीं। वो भी कहता है हाँ, तो ये भी कहती है हाँ। अरे बाइबल में लिखा है हाँ की जगह मत्ती 5:5, मैं तुमने सुना है कि कहा गया था अपने कसमें पूरी करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं बिल्कुल कसम नहीं खानी, ना आसमान की ना जमीन की, क्योंकि ये उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, ना अपने सर की, ना खुदा की कसम खानी है, बल्कि आगे कहता है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह। भाई हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, तो इसने कहा हाँ, ना की जगह क्या कर दिया? हाँ कर दिया, ना की जगह हाँ कर दिया। पढ़ दीजिए जरा। उसने कहा हाँ इतने ही को। इतने। अच्छा, एक और चीज, कई कहते जी खुदा दी हदियां च कोई दिलचस्पी नहीं जी, ये भी मैं तुहानू तज्जियाती तौर पर दस दवा ना। अरे इन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर से एक तज्जियाती लेक्चर ये भी निकलता है, खुदा कहता ठीक है यार, एदा ही प्लांट सी इन्हें ही वेचिया ते इन्हें क्या सी मैं पूरे पैसे देवांगा, चल नहीं देते सू अद्धे दे रहा है ते चलो छोड़ो ऊपर। इससे तज्जियाती लेक्चर क्या निकल रहा है? खुदा की आपके हदियों में दिलचस्पी है, वो आपके हदियों में। तुसी ये कहते ओ खुदा कोई हदियां दा भुखा है, तो इधर भुखा है। 2 बंदे कट छड़े सू, 2 बंदे, इन्होंने झूठ बोला, खुदा ने काटा। जी आगे क्या कहता है? कहती है क्या? उसने कहा क्या जमीन इतने को ही बिकी है? उसने कहा हाँ इतने ही को। हाँ भी पहला झूठ की दलेरी, और फिर कहती इतने ही की, ये दूसरी दलेरी। उतना भी नहीं बोला, बल्कि उसको यकीन दिला रही है कि पादरी साहब यकीन करो, यकीन करो।
मैं सच कह रही हूं कि इतने की बिकी है। और इधर खुदा के ममसू के डायलॉग्स कुछ और थे। जी पढ़ दीजिए जरा। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? हाँ, क्यों एका किया? देख तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं। अच्छा, शोहर जब गश खा के गिरा ना, हदिये तो परा हो के मरे है। जरा में पॉइंट है ना, आ रहा है पॉइंट, तफसीर आ रही है। शोहर मरा गश खा के, हदिये तो कहना परा, हदिये तो जब ये गश खाकर गिरी है, सीधी हदिये दे उत्ते ही डिगी जे। हाय हाय, अब कौन पढ़ांगे? हदिया कहां रखा? ये कहां गिरी? जरा पढ़ दीजिए जरा। देख तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी। हाय हाय, उन्हीं कदमों पर गिरी जहां हदिया रखा था, उते डिगी गश खा के, और उसकी अब रूह जा रही है, निकल रही है, और उसकी आंखें गश की हालत में उस हदिये को देख रही है। ओनू अद्धा इथे नजर आ रहा है मरद्या ते अद्धा कार नजर आ रहा है। नू ये फीलिंग्स हो रही ने, अद्धा इथे वे ते अद्धा कार है। लिहाजा ये इन दोनों मियाँ बीवी का खौफनाक झूठ था। और अरशद साहब ने आगाज़ करवाया है जो मुझसे, वो यहाँ से हुआ है। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। खुदा के कलाम के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। ऊंची आंखें और झूठी, आइए अपनी आंखें बंद करें। चश्मे से